वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। अब जिस ड्रामे का तस्करा हम करेंगे वो बहुत ही ख़ास है और इस हफ्ते का अतीका जी का और मरीना जी का भी फेवरेट था। नादिया का है या नहीं ये तो जब हम डिस्कशन करेंगे पता चलेगा। तो शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। मैं बात कर रहा हूँ मन जोगी की। सो आई सॉ द थर्ड एपिसोड जो मैंने पहले नहीं देखा। तो आपने 2 एपिसोड्स देख लिए? जी मैंने 2 एपिसोड्स देखे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कोट 2 लाइन्स एंड आई एम श्योर यू गाइज हैव रिव्यूड इट ऑल्सो। औरत तो कोई बर्तन है ना, एक ने गंदा कर दिया तो दूसरे को पकड़ा दिया, दूसरे ने साफ करके पहले वाले को थाम दिया। शी इज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट एंड आई थिंक दैट इज सो जस्ट I mean, for an opening of an episode, those lines, the meaning of those lines, how a woman feels in that situation, the depth in those lines. Then the second line is, वो कहती है उसको कि ये तो मेरे भाइयों की तरह है। जब वो कहती है कि तुम शादी करो इब्राहिम से, तो उसकी माँ कहती है कि भाइयों की तरह। तो माँ के वेरी नॉर्मली तो माँ कहती है शादी से पहले शबीर भी तो तुम्हारी भाइयों की तरह था। अगेन ओ माई गॉड, व्हेन वी से cousin marriages, she's saying he was your brother before he got married to you. That is why that is also so wrong at so many levels. The topic, the way, I don't know, it's just so, it's so deep and so heartfelt and so important कि ये चीज़ें आनी चाहिए हमारी स्क्रीन पे, कि ये हम लोगों को बताना चाहिए। एंड ठीक है, कभी कभी आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी कज़न शुड मैरी अनदर कज़न, बट उसकी रीजनिंग भी है ना कि योर ब्लड इज सो क्लोज टुगेदर दैट डिफॉर्मिटीज अराइव बिकॉज ऑफ दैट। अ लॉट ऑफ द टाइम that when we find certain family में ज़रा ज़्यादा डिफॉर्मिटी है या कोई ऐसी इलनेस है जो आप समझ नहीं सकते, that comes with interbreeding and it's just, I mean, I was just totally blown away by I mean, it is understanding that it is so easy for a man to say कि मैंने तलाक दे दिया, now you go marry another man because I want you back. I mean, it is, yes, it is also very difficult for the guy also, but then I think that is why ये शर्त रखी हुई है. But why should the woman suffer? Is the question. Because she has to suffer, because she has to just go to some guy for one night and then come back to this man. I think it is absolutely. लड़कों के लिए भी वो एक ट्रॉमा तो होता है ना, because but they're not going through that trauma. They're just going through the trauma of seeing their wife sleeping with another it's a big person. trauma for the Agreed, but what about her, यार? अब दोनों क्या है, मतलब मैं यही नहीं कह रहा कि लास्ट टाइम ने इससे बात भी की थी। ट्रॉमा, सजा, इट्स अ सजा, punishment for both, दोनों के लिए। But the punishment should be for the man only. He's the one who said talaq, talaq, talaq. Also, sorry, I'm getting emotional here. I shouldn't get emotional. But उसमें हमने लास्ट वीक ये डिस्कस किया था कि ये जो एक प्रोसेस है ना, इसके 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि ये सज़ा है, दूसरा है कि हाउ सीरियस are you about getting back together. It's a big sacrifice you're making to get back together also, you see. So it's a test also. And that's how it is. कि जी आपने ये किया, अब आप इम्तिहान है आपका, आप पास होंगे तो आप कर सकते हैं दोबारा। And you are right. वो मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि वो तो औरत की तो बहुत बड़ा ट्रॉमा है। But you see, बहुत ज़्यादा। आदमी will still get away with it. It also just proves that the world was made for a man. These things actually prove that. That our हमारा जो क्या कहते हैं, patriarchal society तो है, yeah, of course, we are second rate citizens, of course, we are not thought of anything, and that is how, you know, and I think it is so important for men to write stuff like this, for them to understand this. I think this man is a genius. Loved the episode. I won't say anything more because this is about the last episode. I'm sure I'll talk about thumbs and thumbs and thumbs and thumbs. all thumbs up. अदिका जी, ये वाली एपिसोड, क्योंकि ये मरीना ने पिछली एपिसोड पे, नहीं मैं कहती हूँ इस एपिसोड में इतने टर्न्स एंड ट्विस्ट थे, Brilliant. और एक एपिसोड में
इतनी खूबसूरत बातें और चीज़ें दिखाई गई हैं। एंड जस्ट कमिंग बैक टू व्हाट मरीना सिंह, वो कहती है ना कि गुनाह कोई करे उसका कफ़ारा कोई और भरे। ये टिपिकल एक वो उसकी, तभी तो ये थोड़ी सी खफा है और नहीं वापस जाना चाह रही, बिकॉज शी इज़ एंग्री एट हिम कि व्हाई ही इज़ मेकिंग हर, पनिशिंग हर। बट उसमें ये कि देखें इस एपिसोड इट वाज सो चॉक ब्लॉक विद सो मेनी एक्साइटिंग मोमेंट्स कि अब कहाँ से इंसान शुरू करे और कहाँ, मुझे समझ नहीं आया। मेरा एक बहुत बड़ा जो ट्विस्ट आया कि बीच में क्रिश्चियनिटी का वो जो एक ट्विस्ट आया कि जी वो लड़की ब्रिलियंट, वो कहीं और से आई है। ये तो एकदम से एक झटका आया है कि अच्छा शी सडनली you discover that she's not from the family actually. No, she is from the family. नहीं, but there's a Christian side to the कौन सा ये no, वो तो पनाह देते वो हैं पनाह, वो पनाह देते हैं। हर फादर वाज जो उनके बाप वालिद थे वो एक इलेक्ट्रिशियन थे जो कि चर्च का काम फ्री में किया करते थे। बट वो भी क्रिश्चियन थे। नहीं मुझे जो मैंने you think that वो क्यों बाहर गया जब लोग आए थे? वो मुस्लिम था ना, he was saving the church. I mean I don't know, मेरा आगे जाके पता चलेगा। मुझे तो ये लगा कि वालिद उसके क्रिश्चियन थे, ये लड़की क्रिश्चियन थी, इनको फिर बाद में ये कुछ चेंज हुआ है। नहीं, That's what I picked up. But we'll see आगे जाके। हाँ, But I was quite amazed. Also the church was beautiful. क्या खूबसूरत चर्च उन्होंने दिखाया, उसको कैसे पिक्चराइज किया, you know. तो overall it was a fantastic episode. It kept us on the edge. And मुझे जो also जो बात अच्छी लगती, authentic जो एक चीज़ होती है ना, कि देखें आप शायद भूल गए कि वो साइकिल से गिरे हैं, लेकिन इस एपिसोड में बिलाल के जो स्कार्स और स्क्रैचेस अभी भी लगे हुए हैं ना, आपको भुलाने नहीं देते। ये वो टचेस होती हैं जो एक स्टोरी टेलिंग में एक वाव फैक्टर डालती हैं कि यार वो हैंग ऑन नहीं, स्टिल स्कार्ड। अक्सर ही होता है एक सीन से अगले सीन पे वो पट्टी भी उतर चुकी होती है, स्कार भी चला, बट एक्चुअली डिटेलिंग देखें आप इसमें कितनी अच्छी है। इट्स फैंटास्टिक, आई लव्ड इट। और ना मैं आगे बहुत बातें करूँगी इसके बारे में। मैं थोड़ा सा इस वाले पोर्शन में एक्सप्लेन कर दूँ ऑडियंस के लिए भी कि जिनको जो थोड़ा सा इसको ना समझ सके हों, कि वो उसके फादर जो थे उस इलाके के इलेक्ट्रिशियन हैं जो कि डिफरेंट जगहों पे जाके काम करते हैं, चर्च में भी जाके वो काम करते थे। और एक दिन वो चर्च में मौजूद होते हैं अपनी बेटी के साथ, क्योंकि बेटी को भी दिखाया शुरू में कि वो मोटर वगैरह भी ठीक कर लेती है। उसको कैसे आता था, क्योंकि उसके फादर ने उसको सिखाया था। वही बड़ा अच्छा एक चीज़ थी। होता ये कि एक मॉब अटैक करता है चर्च पे, और ये बहुत हमारी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसी कोई चीज़ होती है तो इबादत गाहों पे अटैक शुरू होता है। जड़ांवाला वाला वाक़या आपके सामने, और भी ऐसे वाक़यात हुए जिसमें मॉब जो थे वो अग्रेसिवली आके उन्होंने इबादत गाहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और ऐसे ही एक मॉब उधर आता है तो एक उसमें दिखाया कि एक मुस्लिम आदमी जाकर उनको रोकने की कोशिश करता है कि आप चर्च पे अटैक ना करें, और उसमें उसको जला के मार देते हैं। और वो क्योंकि इसमें जो वो यूसुफ होता है वो कहता भी अपनी वाइफ को कि मैं ये उसने हमारे लिए जान दी थी, अब शायद हमारी जलने की बारी है। तो ये बड़ा खूबसूरत मैसेज था। और पहली दफ़ा पाकिस्तानी किसी ड्रामे में ये चीज़ देख रहा हूँ जो कि सोसाइटी को दिखाने की बहुत ज़रूरत भी है। और सबसे बड़ी बात ये कि सुल्ताना आपा ने जब डिसाइड किया, जो मुझे पता चला है क्योंकि आई स्पोक टू मुस्तफ़ा अफरीदी, तो ये बन ही बहुत ऐसे सेंसिटिव चीज़ों पर रहा है कि हमें कैसे टॉलरेंस लेके आनी है अपनी सोसाइटी में, कैसे एक दूसरे के दिल में जगह बनानी है, और कैसे उन सब्जेक्ट्स को हमने टच करना है जो कि टैबू समझे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही सेंसिटिव तरीके से जो है ये पूरी कहानी बताई गई। और एक ही एपिसोड में इतना कुछ उन्होंने दिखा दिया कि भाई किस तरह से एक मुसलमान, और कहते हैं वो शहीद हुआ है क्योंकि उसने एक मजलूम लोगों को बचाने की कोशिश की और अपनी जान दे दी थी। तो 2 thumbs up इधर शायद ना दिया। कमर्शियल नहीं है ये ड्रामा, बहुत अच्छा हमें लग रहा है क्योंकि हमारी पसंद कुछ ज़रा डिफरेंट है। लेकिन अगर मासिस पे बात की जाए पाकिस्तान की, तो ये उनके लिए ड्रामा नहीं है, उनकी पसंद का नहीं है। उनको अभी भी मसाला, एंटरटेनमेंट, इस तरह की चीज़ें चाहिए। प्लस आप बच्चों के साथ बैठ के ड्रामा नहीं देख सकते, तो इसलिए वो व्यूज़ नहीं है जो होने चाहिए थे। और वैसे इसके पीछे मकसद भी यही है कि एक आर्टिस्टिक चीज़ पेश की जाए और जो लोग उसको देखें उससे कुछ सीख सकें। तो ये कमर्शियल वेंचर इस तरह से हम टीवी का है भी नहीं, बट अच्छा बना हुआ है। हर एपिसोड इस टचिंग, इसमें शुक्र है वॉइस साउंड के भी भंड कम थे इस एपिसोड में और डिफरेंट था। और जो उसकी एक लाइन थी कि मैं वहाँ लेके चलती हूँ, एक और जगह है जहाँ मेरे बाप की कब्र है, तो वो मुझे बड़ा डिफरेंट लगा। मैंने कहा एक और जगह भी कब्र है, ये कैसे हो सकता है? और वो फिर उसने जिस तरह स्टोरी बताई तो पता चला। तो दिस नॉट मच आई वांट टू से अबाउट दिस ड्रामा। ये ड्रामा आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप फील कर सकते। सॉरी, तो मेरी डायरी में भी इसके ऊपर कुछ नहीं है। मैं कुछ लिख ही नहीं पाई, 2 दफ़ा देखा मैंने, लिख नहीं पाई, क्योंकि जो मैंने देखा है वो मैंने महसूस किया और उनको अल्फाज में जिक्र करना, बताना बहुत मुश्किल है। ड्रामा इतना कमाल है। और मैं यही कहूँगा जैसे नादिया कह रहे हैं कि इसके व्यूज़ आने चाहिए। ये वो ड्रामे हैं जो सबको देखने चाहिए। एक्चुअली ये वो ड्रामे हैं जिन पे आप प्राउड फील कर सकते हैं बस। लेकिन लोगों को होता है ना, हम जब देखें इतना स्ट्रेस है ज़िंदगी में, हम जो चीज़ देखें वो एंटरटेन करें,
तो एजुकेट भी कभी कभी हो जाना चाहिए एंटरटेनमेंट के साथ साथ, बट आई एम लविंग। राइटिंग की बात की जाए ज़फ़र महराज मरीना जी, तो मैं तो कहती हूँ गॉड ब्लेस यू ज़फ़र फॉर टेकिंग सच ब्यूटिफुल इश्यूज एंड राइटिंग देम सो ब्यूटिफुली। वो कहती है कि मैं आई डोंट वांट अ डाइवोर्स फ्रॉम यू, तो कहता है आप अपने आप को पाबंद कर रही हैं, कहती है ये पाबंदी मेरी आज़ादी है। ओए होए होए होए, बिकॉज शी डजंट वांट टू गो बैक टू हिम। वरना वो I mean, you know, when you write such simple stuff and it comes in tada करके, you know, it good writing hits you. Oh, so good. ये तो बेल्ट बांध दिया आपने नहीं कोई। नहीं नहीं वो नहीं this is harakiri में ये करते हैं। अच्छा हाँ मुझे And then you go. Samurai. And then you go. ओए होए द लास्ट समुराई हाँ, में you cut your gut out. so much pain हाँ, that's खुद ही the- मारते हैं अपने आप को। The other thing is the characterization. It's so beautiful. भाई उसका जो है, उसको बताया कि वो हल्का सा डरा हुआ बंदा है, तो जब वो जा रहा होता है बिलाल, वो कहता है ना तुम जाओ, तुम अपनी जान तो बिलाल, बचाओ, वो तुम जाओ, बिलाल के एक्सप्रेशन वहाँ है ना, पे और वो बिलाल जब में टर्न करता है हाँ। और ये लड़का भाई सैम जा, सो इट्स सो ब्यूटिफुली रिटन। यू नो व्हेन यू राइट कैरेक्टर्स लाइक दिस, आप कैरेक्टर को बाहर नहीं निकलने देते अपने कैरेक्टर से। वो डरा हुआ बंदा है कि बिलाल ने थोड़ा सा वो जो दिखाया ना, मुझे वहाँ मैं हॉट हुआ था जहाँ पे अस्मा अब्बास बिल को देखती हैं और ओए कहती है, वो ओए, जो लुक दी है अस्मा so अब्बास good. ने, गन भी है उनके पास, मेरे पास ये रहेगी। कैसे क्या She is- मैं यूं हो गया था शी इज सो जब वो और कहती है ना, अंदर से कोई वो evil सही निकल रहा था। जेंटलमैन है। नहीं बट बहुत इंटेलिजेंट औरत दिखाई है। वो जब गन निकालती भी है, वो जब ढूंढ रहा होता है, कहती है गन मेरे पास है और मेरे पास ही रहेगा। ओह, आई मीन लाइक द वे शी एक्चुअली कंट्रोल्स दिस गाय। उसको कहती है ना, यू बिहेव योरसेल्फ। शी इज अगेन लाइक आई सेड, दीज कैरेक्टर्स, एंड विद ईच एपिसोड characters are building up. You're introducing these amazing people like the Martha and Joseph, यूसुफ एंड मरियम। sorry, Maryam and Yusuf. I mean, again, I मैंने don't जी know आप उनके नाम भी इंग्लिश कर दिए, आप इतनी इंग्लिश बोलती हैं कि जिनके नाम उर्दू में थे उनको भी इंग्लिश कर दिया। Dawood and Audience, David. आप बिल्कुल सही मुहिम चला रहे हैं मरीना जी की इंग्लिश कम करवाने के लिए। अब मैं भी आपका साथ दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मरियम को मरियम ही रहने दिया जाए और यूसुफ को जोसेफ ना किया जाए। Martha is not, नहीं क्या, she is Martha. मरियम। हाँ, she was Maryam? हाँ, Why am I saying Martha? Oh, sorry. आप देखती भी इंग्लिश है। उसमें Martha थी। other play बिस्मिल। बिस्मिल में मारता है, हाँ उसमें बिस्मिल में मारता है। मैं भी कहूँ तो दूसरे ड्रामे में मारता। हाँ अच्छा Bismil was not that great. by the way. अच्छा, अच्छा, so तो राइटिंग के नंबर बता दें। and that whole thing where he says I'll take you somewhere किसी, you know, I'll take you somewhere safe and all that, and the next scene they show that she's walking into a church. I'm just saying these are all little steps where we need. That's why I said ना, when you want to जब आप किसी की थिंकिंग चेंज करना चाहते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे सोचो। हाँ। आपको बेबी स्टेप्स लेने चाहिए, एंड दीज आर द बेबी स्टेप्स वी नीड टू टेक, टेलीविजन नीड्स टू टेक, वी नीड टू टेक टू ब्रिंग टॉलरेंस बैक इनटू आवर कंट्री। मुझे लगता है हमारी टॉलरेंस इतनी ज़ीरो हो चुकी है। आप देखें, टेलीविजन एज अ मीडियम आप बंद करें, सिनेमा इज़ नॉट, ठीक है, सिनेमा में आप टिकट खरीद के आप जाते हो, बट यू कैन स्टिल वॉक आउट एंड से कि जी ये मेरे मर्जी का नहीं है। But you're stopping. I mean, how can you stop anyone's creativity? No, so I'm saying this is the kind of writing we need. That you take these baby steps, you take these small steps, but you show this over and over again to bring that tolerance back. Zafar, 10 10 अतिका जी। ब्यूटीफुल, खूबसूरत जुमले, सीन्स, गौहर और आसमा जी के बीच में जो सीन्स हैं वो इतने अच्छे सीन लिखे गए हैं और इतना अच्छा उन्होंने बनाया, काम किया उन दोनों ने एक साथ। उनके आई लव वॉचिंग द मदर सन इंटरेक्शन। एंड सबीना जब जाती हैं अपने भाई के घर और वो भाई उस ताना सा देता है, तो कहती कि मैं तो अपनों के पास आई बताने कि मेरे साथ हुआ क्या था, कि कहीं और से आपको पता ना चले, क्योंकि वो तो गलत बात कर रहे हैं। तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारी बहन के साथ। तो वो इतना, वो तो सच अ ब्यूटीफुल सीन। एंड फिर राइटिंग में आप देखिए, जब फ्रीज फ्रेम की हम बात करते हैं क्लोजिंग ऑफ एपिसोड, जब वो छुप जाती है और भाग जाती है बस स्टॉप पे और वो उसको ढूंढ रहा है, अब नाउ दैट इज़ अ प्रॉपर एंड टू एन एपिसोड वेयर यू से अब क्या होगा, अब क्या होगा, कि वो गायब हो गई है बिकॉज शी डजंट वांट
कि इसके ऊपर बोझ बन जाए। कहती भी है ना तुम चले जाओ, शी कीप्स ट्राइंग टू से गो, और वो कहते हैं तुम बोझ नहीं बनना चाह रही, तुम जाओ एक्चुअली गायब होने की कोशिश कर रही है लड़की। तो अब आगे आप सोचते हैं क्या होगा। अच्छा, फिर बिलाल का कैरेक्टर भी साइलेंट बट वेरी इम्पैक्टफुल। उसके जो मोमेंट्स बने हुए हैं, जो यानी कि इतनी बात नहीं करता, जुमलेबाजी नहीं है, बिलाल के पास बहुत कम जुमले हैं, लेकिन उसके ओवरऑल मोमेंट्स बने हुए हैं स्क्रिप्ट में. So that character is also up there, you know, even with the ones that are talking more than he is. I think it's fantastic. 10. 10. नादिया. जब सबीना उसको कहती है कि कैसे हो सकता है किसी का कोई ना हो, ये एक मिस्ट्री है कि बिलाल का कैरेक्टर कौन है, जो अभी तक सब कुछ ही खुल गई हैं, बातें ये नहीं अभी तक खुली कि ये कौन है, ये वहाँ कैसे पहुँचा, इसके क्यों आगे पीछे कोई नहीं है. तो आई होप कि वो भी किसी एपिसोड में जाके पता चले. मौलवी साहब ने कहा है क्या, हाँ शुरू में कहा वो कहते हैं ना कि उसके घर ले जाओ, तो कहते हैं जब मैं पहुंचा तो उसका घर तबाह हुआ था, सिर्फ ये एक बच्चा बच गया. हाँ, वही चीज़ दिखा दी जाए, थोड़ी और बता दी जाए, आगे इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और आए. फिर भी कोई ना कोई तो रिश्तेदार कहीं ना कहीं कुछ होता है, आपका घर भी चला जाए. ही हैज़ नो वन व्हाई. तो आपने कितने नंबर दिए? 10. या नंबर तो वही है, क्योंकि बहुत कमाल डायलॉग, याद रह जाने वाले और समझ आने वाले, और जिस तरह से स्टोरी प्रोग्रेस की, इट्स सरप्राइजिंग, और नहीं समझ आ रहा कि आगे क्या होगा. हाँ, ये जो इसमें इवन इस एक ही एपिसोड के अंदर इतने राइटर हमसे 10 स्टेप आगे है हमारी सोच से. जान साल में मैं उससे आगे हूँ. ये बस हम सब आगे रिहाना आप सब बहुत आगे चल रहे हैं कि भाई रिहाना जी ये कर लेते हैं. इसमें आप कुछ नहीं कह सकते कि आप मतलब आपके पास कुछ जगह ही नहीं है कि आप राइटर मन जोगी में राइटर हमसे 100 कदम आगे. 100 कदम आगे हैं. तो ऑडियंस की तरफ चलता है जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए 20,750 हुए हैं, और मन जोगी से जफर मिराज साहब के हिस्से में आए 4,181. 20% बनते हैं 2 पॉइंट. He deserves more though. Yes. Much more. मरीना जी. काशिफ निसार. काशिफ निसार प्लेज विद फ्रेम्स. सॉरी, मैं आपको एक ये फ्रेम दिखाना चाहती हूँ. ओह, आज कुछ स्पेशल लेके आए हैं मरीना जी. I swear to God, this man, I mean, अगर ये हम just look at this frame, it's just, I mean, like, I wish. कौन सा? This is when they knock at the door and the sister, it's an empty frame right now, but if you just look at the balance of this frame, it's just absolutely stunning, and that's what I realized. You know, Noor Jahan, beautiful frames, but they're moving, huh? Kashif Nisar's frames are static, but the depth in them. वो एक सीन है, पीछे वो नमाज पढ़ रहा है और क्लोजअप इस पे है, और वो पूरा वो बोल रही है, and the moment it finishes, वो एक चीज़ कहती है and the focus just shifts back. Oh my God! और इसमें जो वो जाली के पीछे से बहन भाई देख रहे होते हैं, वो जब उसे जाने का कह रही होती है, वो दोनों पूरी बात सुन रहे हैं, और वो कैमरा भी जाली के पीछे है. Everything. I mean, like, it's like every frame is just so well thought of, and they're static, but they're very, very imaginative, and I think ये आपने एक दफ़ा पहले भी कहा था नादिया ने कि खाली हैं, मीनिंग कोई शोशा नहीं है, हाँ. कोई फैन फेयर नहीं है, बट जो आपने बात कहनी है या जो एक्सप्रेशन या फीलिंग आपने ऑडियंस की निकालनी है, वो निकाल लेते हैं. नंबर्स 10. अतीका जी. तो सबसे पहले तो मैं काशिफ को शुक्रिया करना चाहूँगी कि वो रीजनल लैंग्वेजेस नहीं भूलते. मुझे इस एपिसोड में पंजाबी इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी. जो मरियम बोलती है. I enjoyed the Punjabi so much. तनवीर साहब, हाँ. I love the Punjabi and real पक्की पंजाबी, पंजाबन निकली ना, मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने उर्दू ड्रामा को उर्दू ही कर दिया है. लोग भूल गए कि यहाँ पे और भी बहुत सारी ज़बानें चलती हैं पाकिस्तान में जो बड़ी खूबसूरत हैं. और अब जैसे काबली पुलाव में आपने एक और ज़बान दिखा, यू नो, इट्स सो इम्पॉर्टेंट to never forget our regional languages because they're beautiful language. और उनके global audience है. Actually जब आप पंजाबी, सिंधी, बलोची में या पख्तू में बात करते हैं, तो दुनिया में ये लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं. The world is watching these languages. So I loved the Punjabi moments. Of course, Kashif is a master at his craft, and उन्होंने स्क्रिप्ट को और भी एलिवेट कर दिया अपनी फ्रेमिंग के साथ, लाइटिंग के साथ, वो काम जो निकालते हैं एक्टर्स से.
डिटेलिंग से, उसको करूँगी एंड आई थिंक इट्स जस्ट ब्यूटीफुल व्हाट ही इज डन रियली। हम हर हफ्ते यही कहते हैं तो और मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं सिर्फ कह सकती हूँ कि काशिफ आई एम सॉरी 10 बहुत कम नंबर है आपके लिए, लेकिन 10 इज आवर सीलिंग तो 10। नादिया, हाँ ये वैसे फ्रेम बड़ा अच्छा दिखाया है, दिखाओ, मरीना जी ने, दिखाओ। वाकई बड़ा खूबसूरत है। It's like इसको a हमने सोचा हम painting. इसको घर पे लगाएंगे। It's like a painting. No, the whole every Marina, even when they arrive at the building, now, टोन That's बड़ी what I'm अच्छी saying. है इसकी, That- टोन that's what I'm saying. अच्छी लग रही है। Works. अब शुरू में थोड़ा सा नादिया। डार्क लग रहा था, अब वैसा डार्क भी नहीं लग रहा। ऑडियो के भी इस दफ़ा मुझे मसाइल नज़र नहीं आए। जो सीन मुश्किल था और अच्छा बना वो जलाने वाला था, जिसमें वो बच्ची के फादर को दिखा रहे हैं, वो nice. बाहर बच्ची गए। was so good. हाँ, बच्ची बहुत अच्छी थी और बच्ची को तार का बिजली का काम वहीं से बाबा ने सिखाया। अच्छा हुआ तो वो भी एक्सप्लेन हो गया कि उसको कैसे पता है, क्यों पता है। और जब बाप बाहर जाता है मॉब को कंट्रोल करने और उसको जला देते हैं, जैसे उसका जितना भी शूट कर सके, बहुत मुश्किल है इसको शूट करना। इस बहुत चीज़ को। सेंसिटिव था। बहुत सेंसिटिव था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वॉइस, साउंड और shadows. सिम्बॉलिकली और इस तरह दिखाया, वो बहुत कमाल था कि हमें वो फील हुआ कि वाकई कोई बाहर जला है। क्योंकि इट्स लाइक आई सेड कि उसको शूट करना आसान काम नहीं है, बहुत बजट वाला काम है। लेकिन बच्ची के एक्सप्रेशंस, शैडोज़, साउंड, उससे वही फील आई कि हाँ कुछ हुआ है। तो 10 फॉर दिस अमेजिंग एपिसोड। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 19,800 हुए हैं और मन जोगी से काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए हैं 3,803, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए सबीना फारूक की। मरीना जी, Sabina is doing a fantastic job because I think Sabina को ऐसे roles सूट भी बहुत करते हैं। और जब आपके पास एक इतना ब्यूटीफुली रिटन स्क्रिप्ट है, इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, इतनी ब्यूटीफुल लाइंस हैं, इट वुड हैव बीन टेरेबल अगर वो जस्टिस ना करती उन लाइंस की, लेकिन शी इज़ डूइंग जस्टिस टू दोज लाइंस। आई थिंक शी इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। देर ऑल डूइंग, एवरीवन। मैं तो कहती हूँ इवन वो जो नया एक घर इंट्रोड्यूस किया है जिसमें उसका जो चौकीदार आता है सामान के साथ, उसके फनी से बाल होते हैं, उसने भी अच्छा किया, यू नो। सो ये बंदा इवन वो जो है, कंडक्टर जो था जो कहता है कि बेगम में तो साथ बैठ जाना, मेरी दूसरी सवारी आने दे, एवरीवन वाज सो गुड। काशिफ के प्ले में ना वो अच्छा करता है। तो सबीना के लिए आई विल गिव हर 9। अतिका जी, तो जो एस्पायरिंग जो एक्टर्स देख रहे हैं हमें आज, वहाँ मैं कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ ये प्ले देखें, क्योंकि काशिफ निसार का जो काम होता है, वो जो चीज़ निकालते हैं अदाकार से ना, वो एक मास्टर क्लास होती है। तो अगर लेट्स से आप कभी भी कहीं नहीं जा सके ट्रेनिंग लेने, या आप कहीं किसी स्कूल में नहीं गए पढ़ने द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग, तो आप इनके ड्रामे ज़रूर देखें, बिकॉज हर कैरेक्टर की जो परफॉर्मेंस होती है वो एक मास्टर क्लास होती है। और दैट्स वेयर डायरेक्टर टेक्स आउट व्हाट ही नीड्स टू फ्रॉम द कैरेक्टर, द एक्टर फॉर द कैरेक्टर। तो आई थिंक दैट सबीना इज़ डूइंग सच ट्रिमेंडस वर्क। वीव सीन अ डू वर्क विद अदर डायरेक्टर्स, इतना वो उनका काम नहीं जमा जितना काशिफ निसार के साथ जमता है। होपफुली वील सी हर डू मोर लेटर, लेकिन इन दिस शी इज़ जस्ट फैंटास्टिक। आई विल गिव हर अ 10। काशिफ निसार ने इनसे बड़ा अच्छा काम निकाला है, लेकिन बड़ी बात तब होगी जब वो मुझसे ऐसी एक्टिंग करवाएंगे, फिर मैं मानूंगी आपको। से तब इम्प्रेस में आपसे तब होंगी बहुत ज्यादा, फिर बड़ी बात हुई ना। काबली पुलाव के बाद आने वाला है निहारी देग उसमें होंगी नादिया। इनसे करवा लिया, क्या बड़ी बात है, इससे अब करवाएं ना देग जरा, के अंदर फिर मैं होंगी या देग बना रही होंगी? नहीं, सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी। सबीना बिलाल से करवा के कोई बड़ी बात नहीं, मुझसे करवाए ना कैरेक्टर ऐसा, फिर मैं मानूं। वाह सिंधी क्या बिरयानी के नाम डायरेक्टर से है। ड्रामा बनाए काशिफ निसार, उसमें नादिया होगी। नहीं, ऐसा काम करवाएं मुझसे, फिर मैं मानूंगी, तब तक नहीं मैं मान रही। लाइक द प्लग, इट्स अ प्लग। ओह यस, पर्ची आ गई जी, पर्ची। नहीं मैं तो उनको चैलेंज दे रही हूँ। हाँ चैलेंज है। फिर होगा ये मुकाबला, फिर पता चलेगा, फिर मैं कहूँगी मान गया सर आपको। पिछले एपिसोड में बेबी बॉय का मुकाबला था, इस दफा करेंगे मुकाबला कौन सा बेबी बॉय? बेबी बॉय आपका। हाँ आपका हुआ, आपका। फिजा ने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी आ रही हूँ। तो हाँ बस इस तरह ही मैं कहना चाहूँगी, अब आप समझ जाएं, देख लें। ये सबीना को कैसे इन्होंने अपनी तरफ मोड़ा है नादिया की, यही चालाकियां होती है। सही बात है, एक्टर्स ऐसे ही करते हैं। तो सबीना के 9 इन दिस एपिसोड। 9 ओके जी, 9 हो गए नंबर। फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं, 22,595 इस वक्त कास्ट हुए हैं वोट,
और सबीना फारूक के हिस्से में मन जोगी से आए हैं 3,412, 15% बनते हैं 1.5 मिले हैं, इनको भी थर्ड हाईएस्ट मिले हैं। अब जी बात कर ली जाए बिलाल अब्बास की, मरीना जी। Bilal, I think, is doing such a great. Bilal is a good actor, always been a good actor. He has not disappointed me once in anything that he's done. Even in the overly stretched इश्क क्या था हमारा इश्क मुर्शद, उसने अपना काम पूरा किया है। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा था जब वो चर्च में बैठा हुआ है और वो देख रहा है, ही इज़ लिटिल अनकम्फर्टेबल बिकॉज अगर आपको याद हो जब वो इनके घर आता है, जब माँ के दिमाग में आता है कि ये लड़का सही है, इनके घर में आता है, कहता है कि वो बिजली चली गई है, तो कहती जाके ले आओ किसी को, तो कहता है नहीं, अगर बीबी आ जाएं तो ये बहुत अच्छा काम कर लेंगी। तो कहती पागल हो गए हो, कोई भी इलेक्ट्रिशियन को पकड़ लो। कहती कि नहीं, हमारा जो इलेक्ट्रिशियन है वो बीमार है, और जिस इलेक्ट्रिशियन का वो नाम लेता है ना, तो कहता है मौलवी साहब कह रहे हैं कि उनका मस्जिद में आना जायज़ नहीं है बिकॉज इट वाज अ क्रिश्चियन गाय। And where does he end up eventually? I mean, again, sorry, that's writing, but still, his expression there, because it literally, it reminds you of what he said and where he reached and how they helped him. So I think that's so fantastic, but Bilal is doing a wonderful job. His body language, his nervousness, his everything that he is doing in this, every word that he is saying, he's bringing out the expression and the feeling and wanting us to believe, and as Nadia said, we want to now know कि इसकी history क्या है, and hope that we will find out eventually, but 10 for him. 10 हकीकत है। तो मुझे खुशी इस बात की कि बिलाल बहुत सेंसिबली और इंटेलिजेंटली अपने रोल सेलेक्ट कर रहा है, क्योंकि ही इज़ अ गुड एक्टर, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट ही इज़ अ गुड लुकिंग बॉय, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिप डाउन रॉ परफॉर्मेंस की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे ना वार्डरोब का कोई सहारा है, ना कोई खूबसूरत हेयर स्टाइल का सहारा है, टोपी पहनी हुई है। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल ही एक बहुत ही सिंपल लड़का, ही नहीं है यहाँ तो, बिल्कुल सिंपल लड़का, उसी कपड़ों में लोग, वेरी सिंपल लुकिंग बॉय डूइंग वेरी सिंपल थिंग्स एंड स्टेइंग विद इन कैरेक्टर। बिलाल ने अपने कैरेक्टर को कहीं नहीं छोड़ा, और सबसे अच्छी बात बिलाल की है कि वो अपने रोल्स बड़े तरीके से सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप देख लेना ऐसे इश्क मुर्शिद चला या अब ये चला, मेरा मतलब है कि यू कैन सी द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स ही इज़ पिकिंग, एंड दैट बाय द वे फॉर अगेन एस्पायरिंग एक्टर्स ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइप कास्ट ना हो। उसमें दो प्रॉब्लम्स, एक तो अब फंस जाते हैं उधर उसी मोल्ड में, और दूसरा ये कि आपका अपना काम फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, लोग समझते हैं आप और कुछ कर ही नहीं सकते। तो आई थिंक ओवरऑल माहौल बिलाल के लिए बहुत अच्छा है, एंड बिलाल इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब इन इट, एंड ऑल्सो साइलेंट मोमेंट्स। मुझे जो बिलाल के कैरेक्टर के जो अच्छा लगा ना इसमें, कि ज़्यादा बात नहीं है उसके, ही डजंट हैव अ लॉट ऑफ, वो जैसे उसके भाई को लुक कराता है गली में खड़े होकर, जैसे देखता है और जो चीज़ें पूरी चीज़ आप तक पहुंच जाती है। तो एक्टिंग तो यही है ना, विजुअल मीडियम है ना, तो एक्टिंग का कमाल ही होता है कि आप मुंह खोले बगैर आप क्या दिखा सकते हैं लोगों को। I'll give him a 10. नादिया, इस एपिसोड में जो बिलाल ने कमाल काम किया है, जब सबीना को उसका भाई बंद कर देता है। अब बिलाल को थ्रू आउट उन्होंने दिखाया है कि वो डरपोक सा है, उसने तो थप्पड़ भी चुप करके खा लिया गौहर से, डरपोक है, सेंसिटिव है, इमोशनल है, लेकिन जब उसको बंद किया है ना, इसके अंदर से एक अलग बिलाल निकला, अंदर से अलग कैरेक्टर निकला, और वो इसको एक्चुअली देखा जाए तो वो इसको संभाल सकता है। मर्द का बच्चा फिर भी अंदर है, दिखा नहीं रहा क्योंकि कुछ है नहीं उसके पास शो मारने के लिए, या अपना कुछ भी नहीं है, तो इसलिए उसका सर झुका हुआ है। लेकिन बीवी पे बात आई है, जैसे वो डिफेंड करने गया, जिस तरह उसने इसके भाई को देखा, और वो तो गया ना, उसकी लुक से, यहाँ कोई बदतमीजी नहीं हुई, थप्पड़ नहीं पड़े, उसने सिर्फ अपनी लुक से भाई साइड पे हट गया कि मैं इसकी बीवी को बंद कर रहा हूँ, बहन मेरी बाद में इसकी बीवी है, आया है और अब नहीं जाने दूंगा तो मारेगा मुझे बहुत बुरा। और आपको फील होता है कि बिलाल इज़ केपेबल ऑफ हिटिंग एनीवन, फाइटिंग, क्योंकि अब बीवी पे बात आई है। तो वो जो स्ट्रेंथ डायरेक्टर ने उसकी दिखाई है, जिस तरह उसने दिखाया ना, एकदम अपना ट्रांजिशन, एकदम चेंज, वाज अमेजिंग बिलाल का, बहुत बहुत अच्छा था, क्योंकि वो मोमेंट बहुत स्पेशल था, इसलिए 10।
वेरी वेल डिजर्व। और जी ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 22,945 हुए हैं और मन जोगी से बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं 3,929, 17% बनते हैं, 1.7 सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं। प्लीज वॉच मनजोगी, प्लीज वॉच मनजोगी। और दो परफॉर्मेंसेस जिनका मैं तस्करा करना चाहूंगा, अस्मा अब्बास की, और रशीद की, फिनोमिनल। Even Tipu, कमाल। तो हुंडा बनी है इसमें, डॉन है। सारे ही बहुत अच्छे। सारे बहुत No, अच्छे but Tipu, who's playing a Maulvi in another, but he's playing such a different भाभी भी Maulvi बड़ी in अच्छी this. है। भाभी कहती है मैं जरा जाके मोहल्ले में सुनगुन लेके आऊँ। सुनगुन इतना मजे का लफ्ज है, मैंने नहीं सुना कभी। अच्छा जी, तो ये कंप्लीट हुआ आज का एपिसोड।